जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जो भी श्रद्धालु माँ के लिए श्राब लेकर के आते हैं, यहाँ पर महामाई को श्राब इत्यादि ही शुरू से ही चढ़ाई जा रही है। और वो श्राब लगा करके महामाई को हम पीछे जो हवन कुंड बनाया हुआ है, श्राब कुंड बनाया हुआ है, उसमें डाल देते हैं। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁੰਡ ਹੋਂਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੁੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इतने शराब इसलिए चढ़ने क्योंकि इस माता काली माता च अपनी बहुत शक्ति है। माता रानी सब दी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई अपनी सुख लेंदा, हाँ जी माता रानी मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं थोड़े बोतल चढ़ावांगा। काली माता दे बकरा मुर्गा और अपने नींबू दियाँ माला चढ़ाते हैं, कई 108 चढ़ाते हैं, अपना बहुत कुछ चढ़ा चढ़ा बकरे मुर्गियाँ सब चढ़ते जी उत्थे। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਉਰੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। जो भी भक्तजन माँ के दरबार में जो भी भाव लेकर के आता है, जो भी मनोकामना लेकर के आता है, माँ काली उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। यहाँ कई प्रकार का ऐसा आभास हुआ है, हमारे पुराने पुजारियों ने भी बतलाया है। जब माँ का स्नान शाम को रात को मंदिर बंद होने के बाद माँ का सेजा लगा दिया जाता है, और सेजा के बाद माता जी का जो सारा बिस्तर इत्यादि लगा करके जब सभी पुजारी अपने कमरे में, जो पुजारी मैन रहते हैं नाइट में, वो कमरे में चले जाते, तो सुबह जब 3 बजे पुजारी स्नान इत्यादि करके माता जी को उठाने के लिए आते, तो बिस्तर में कुछ हिल डुल सी मिलती है। पानी की गड़वी रखी जाती थी माता जी के लिए। सुना है हमने, हमारे पुराने पुजारियों ने बतलाया है कि पानी की कुछ बूंदें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। माँ को दर्शन करके भोग लगाते हैं श्रद्धालु। भोग लगा करके अपना प्रसाद हम उनको वापस दे देते हैं, जैसे श्राब इत्यादि वो हवन कुंड में डाल देते हैं। उसके बाद पीछे माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर है, जो महाराज कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी की कुल देवी हैं, और उनका दर्शन करके वो सात्विक रूप में हैं। माँ चामुंडा का रूप है, वैष्णव रूप में है। उनका दर्शन करने के बाद हम हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद शिव परिवार का मंदिर है, फिर उसके साथ ही सूर्य नारायण जी का मंदिर है, उनके साथ ही वेद व्यास जी का मंदिर है, फिर पीछे गणेश जी और भैरव बाबा जी की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ। ਔਰ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਭਾਜੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਉਰੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁੰਡ ਹੋਂਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੁੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਿਵ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਦੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਤਾ 'ਚ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਤਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁੰਡ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ? ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਕਰਾ, ਮੁਰਗਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ 108 ਹੋਏ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬੱਕਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਾਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਟੀ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। देखिए, सबसे पहले तो सभी भक्तों को जो इस चैनल को अपने को देख रहे हैं, बहुत बहुत महामाई की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री सभा सावधान नमस्तुते। देखिए, अगर आप बात करें महामाई के इस मंदिर की, जो पटियाला के अंदर स्थित है, यह मंदिर महाराज जो अपने हैं उन्हों के पूर्वजों ने, महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पूर्वजों ने बड़ी श्रद्धा से, भाव से इस मंदिर को बनवाया था।
और आज से लगभग 350 साल पहले महामाई राजराजेश्वरी जी की मूर्ति को लेकर के आए थे और बड़े विधि विधान से इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। आज भी महामाई की अखंड ज्योत चल रही है। उसके बाद 100 साल बाद लगभग तो महाकाली जी की मूर्ति लेके आए थे और ज्योत को लेके आए थे कलकत्ता से, और तांत्रिक विधि के द्वारा महामाई की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया और वो ज्योत आज तक महामाई की यहाँ निरंतर चल रही है और बड़ी अपार कृपा है महाकाली की यहाँ पर। जो पंडित की बात शराब कुंड है, उसके बाद हवन कुंड है, इसके बारे में जानकारी। श्राव कुंड, जो भी श्रद्धालु माँ के लिए श्राव लेकर के आते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि महामाई की तांत्रिक विधि के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है, तामसिक विधि के द्वारा, तांत्रिक विधि के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर महामाई को श्राव इत्यादि शुरू से ही चढ़ाई जा रही है और वो श्राव लगा करके महामाई को हम पीछे जो हवन कुंड बनाया हुआ है, श्राव कुंड बनाया हुआ है, उसमें डाल देते हैं। जो तांत्रिक विधि बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। 2 प्रकार से मूर्ति स्थापित होती है, एक तामसी, एक सात्विक। सात्विक में महामाई को, भगवान को जिस भी देवता की मूर्ति स्थापित होती है, सात्विक में ड्राई फ्रूट, फल इत्यादि, कड़ाह, फल, इस चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और जो तांत्रिक विधि है, तामसिक विधि है, इसमें मांस मदिरा इत्यादि का भोग लगाया जाता है। मैं आपको यही बतलाया है कि तामसिक विधि के द्वारा मांस, मदिरा और बलि के रूप में कुछ भी, बकरा है, मुर्गा है इत्यादि का प्रसाद लगाया जाता है। जो भी श्रद्धालु महामाई के लिए बकरा, मुर्गा इत्यादि लेके आता है, हम उसका पूजन करवा के, मंजूर करा के महामाई को यहाँ पर मंदिर में रख लेते हैं, छोड़ देते हैं मंदिर के अंदर। हाँ जी, देखिए वो तो काफ़ी समय बीत गया, लगभग 3-4 पीढ़ियाँ हैं। कुछ उनके जो आगे संतान है वो चल आ रही हैं, पर उसके बाद कुछ विद्वान ब्राह्मण भी बरते हुए हैं और वो उनकी कुछ पीढ़ियाँ भी चल रही हैं। ब्राह्मणों के, बिहार से ब्राह्मण आए थे, उनके आगे बेटे, फिर उनके आगे बेटे, ऐसी पीढ़ियाँ चल रही हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो माँ का ऐसा सच्चा दरबार है। जो भी भक्तजन माँ के दरबार में जो भी भाव लेकर के आता है, जो भी मनोकामना लेकर के आता है, माँ काली उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। यहाँ कई प्रकार का ऐसा आभास हुआ है, हमारे पुराने पुजारियों ने भी बतलाया है, जब माँ का स्नान, शाम को रात को मंदिर बंद होने के बाद माँ का सेजा लगा दिया जाता है और सेजा के बाद माता जी का जो सारा बिस्तर इत्यादि लगा करके जब सभी पुजारी अपने कमरे में, जो पुजारी मैन रहते हैं नाइट में, वो कमरे में चले जाते, तो सुबह जब 3 बजे पुजारी स्नान इत्यादि करके माता जी को उठाने के लिए आते तो बिस्तर में कुछ हिल डुल सी मिलती है। पानी की गड़वी रखी जाती थी माता जी के लिए। सुना है हमने, हमारे पुराने पुजारियों ने बतलाया है कि पानी की कुछ बूंदें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। देखिए, वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, परंतु 2 नवरात्रे यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से, भाव से और बड़े हुम हुआ करके मनाए जाते हैं, चैत्र के और आश्विन के। इनमें श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ को अपनी मनोकामना सुनाने के लिए, माँ को अपनी व्यथा सुनाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, कहीं 7-8 स्टेटों में तो अपना लाइव चल रहा है। और आप जैसे मीडिया का भी बड़ा सहयोग है, जो माँ को दर दर तक, घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले माँ को दर्शन करके भोग लगाते हैं श्रद्धालु। भोग लगा करके अपना प्रसाद हम उनको वापस दे देते हैं, जैसे श्राव इत्यादि वो हवन कुंड में डाल देते हैं। उसके बाद पीछे माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर है, जो महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुल देवी हैं, और उनका दर्शन करके वो सात्विक रूप में हैं। माँ चामुंडा का रूप है, वैष्णव रूप में है। उनका दर्शन करने के बाद हम हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद शिव परिवार का मंदिर है, फिर उसके साथ ही सूर्य नारायण जी का मंदिर है, उनके साथ ही वेद व्यास जी का मंदिर है, फिर पीछे गणेश जी और भैरव बाबा जी की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। विशेषतः देखिए, माई का जहाँ पर मंदिर होगा, माँ काली का, माँ वैष्णो का, देवी का किसी का भी मंदिर होगा, तो वहाँ पर भैरव बाबा जी ज़रूर होते हैं। माँ के एक पिए के रूप में कह लीजिए, माँ के एक सहायक के रूप में कह लीजिए, माँ के पुत्र के रूप में कह लीजिए,
माँ के अंग संग रहते हैं बाबा बजरंगबली जी और बाबा भैरव जी। पटियाला को छोड़ो आप, कई स्टेटों में, लगभग पूरे भारत में तो छोड़ो, विदेश तक महामाई की मान्यता है। विदेश तक लोग यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं और कई बच्चों का विदेश जाने के लिए जब नहीं कार्य बनता, यहाँ नतमस्तक होके जाते हैं तो माँ उनकी तुरंत पुकार सुन लेती है और वहाँ बैठ कर के भी डेली माँ के माई के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या लाइव के माध्यम से वो दर्शन करते हैं। और आज जितनी श्रद्धा भारत के अंदर है, इतनी ही श्रद्धा विश्व में। शनिवार की कुछ अलग है, शनिवार को बहुत हाँ, शनिवार को माई का विशेष दिन माना जाता है। पिंडों से लोग बड़े हुआ के यहाँ माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी होता है शनिवार को मंदिर में। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ।